The biggest poison in us is regret. I think there are a lot of people that have dreams and aspirations of things that they always wanted to do, but it wasn't the right time, or they didn't have enough money, or they didn't have enough experience. It's never the right time. You're never going to have the right experience. And all of a sudden you wake up and you're 70. And you're like, God, I wish I could have done it. It's what you don't do that screws with you later on. I get one shot at this life. This is it. And I don't want to go through life being the 80% version of me. I don't want to look back and be like 77 and be like, I didn't do that. There's so much I want to do, and I love life so much, I don't want to miss it. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I Hello everyone and welcome to a new video. Today I'm gonna do squats and साथ में leg session है पूरा का पूरा. जिन लोगों को अपनी squat की strength बढ़ानी है and they need an extra support, you can get these knee sleeves. These are by Hack. Now it's not a promotion but I personally like them very much. This is ये S size है and ये बहुत बढ़िया support देते हैं. ये पूरा का पूरा area tight हो जाता है and when you squat, when you go into that squat position, तो वापस आने में it gives you that help and support which you need. Okay, तो आज का गोल है 140 के 5 और उसके बाद बैक डाउन में 130 के 3 सेट 8 रख के लिए. कोई ना मैं लास्ट सेशन हाँ डाल दूंगा मेरे को कोई. लास्ट सेशन में 140 के 2 सेट लगाए थे 5 के एंड उस टाइम नर्वस सिस्टम फायर्ड अप हो गया था. नाउ के सामने वो बन जाते हैं लोग. क्या बन जाते हैं? चौड़े होने लग जाते हैं ना आजकल लोग. अपनी आप समझने लग जाते हैं कि थोड़ी सी पर उनको नहीं पता. कोच ही होता है. 140 का आज एक सेट है 5 रेप के लिए. तो ये जो 4 वीक का ब्लॉक है वॉल्यूम ब्लॉक, इसका मेरा मेन गोल है कि मैं तो 152 या 153 के अराउंड एक सेट 5 रेप का मारना ताकि मेरी 170 कंफर्म हो जाए. एंड फॉर दैट दिस इज़ अ बिल्डअप 4 वीक वर्कआउट प्रोग्राम. हाइपरट्रॉफी गोल है. जो बैक डाउन 3 सेट 8 रेप किया दैट इज़ द मेन थिंग टू ऐड सम मोर मसल मास इनटू दिस फकिंग लेग्स. can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. ये गाड़ी स्ट्रॉन्ग एक सेट और आएगा बढ़िया. थोड़ी रेस्ट लंबी लेनी पड़ेगी. Okay, so honestly speaking, स्क्वाट्स मेरे लिए नंबर 1 एक्सरसाइज है. अगर मेरे को सारी एक्सरसाइज से बोला जाए कौन सी एक्सरसाइज करना तो मैं सबसे ज़्यादा पसंद आई विल से स्क्वाट्स. द रीज़न बीइंग कि स्क्वाट्स लगा के जो मेंटली स्ट्रॉन्ग फील होता है ना, जो ओवरऑल बॉडी में स्ट्रॉन्ग और वो स्ट्रेंथ फील होती है वो किसी और एक्सरसाइज में नहीं होती. और सेकेंड रीज़न ये है कि लेग्स ट्रेन करना, स्क्वाट ज़्यादा से ट्रेन करने से आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है. एंड बीइंग अ नेचुरल लिफ्टर आई हैव टू टेक दैट बूस्ट कह लो, लेवरेज कह लो, जो भी है, बट मुझे वो चाहिए. हर एक को चाहिए. तो अपनी लेग्स ट्रेन करना या स्क्वाट्स ट्रेन करना कभी मत छोड़ो. स्क्वाट में मुश्किल आती है, अपनी मोबिलिटी इंप्रूव करो बिकॉज स्क्वाट्स लगाना इज़ द बेस्ट फीलिंग यू आर गोना एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. ज़्यादातर लोग स्क्वाट्स करना छोड़ देते हैं बिकॉज उन्हें वो मुश्किल लगता है. बट इट्स नॉट अबाउट द एक्सरसाइज, इट्स अबाउट योर माइंडसेट एंड कितना डीपली आप बॉडी बिल्डिंग को या लिफ्टिंग को रिस्पेक्ट करते हो और उसके बारे सीखते हो. दैट इज़ व्हाट मैटर्स. एंड अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ जाओ तो यू विल सी दैट स्क्वाट जैसी फीलिंग कभी नहीं आती. एंड जैसे
you should go deeper in thoughts. Saket Gokhale says that chest day best day. I say leg day best day. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है अपने कॉर्ड्स को बढ़ाना. येस डेफिनेटली जेनेटिक्स टू हैव फैक्टर है. उसके कारण मेरे को ग्रोथ अच्छी मिली है. बट योर ट्रेनिंग मैटर्स मोर. न्यूट्रिशन ऑल्सो मैटर्स मोर. आर यू ट्रेनिंग हार्ड इनफ? आर यू ट्रेनिंग योर लेग्स टिल फेलियर? क्या तुम एक सही प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो? आर यू डूइंग यूनिलैटरल मूवमेंट्स टू एलिमिनेट द imbalances? Most of the people, they don't train their legs hard enough, and then they say that it's very difficult to grow the quads. But you just gotta put in the work. The same effort that you put in on your upper body, you have to put that same effort in your legs too. And then you say this growth. अभी तक upper body train नहीं करी है. There is no pump. And still arms are looking pretty better. Improve करी है मैंने. आर्म्स मेरा सबसे वीक पार्ट है जेनेटिक्स में, सबसे ज़्यादा. एंड तभी आई ट्रेन देम हार्ड इनफ. फाइव ईयर्स इन द मेकिंग. एंड अभी तो जस्ट शुरुआत है. लोगों के मन में जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेकर डाउट्स है ना कि हम कर नहीं सकते, सीवर्स लेने पड़ेंगे, I'm gonna eliminate that factor from their mind. That's the ultimate goal. Much stuff, a bag, tripod, belt, camera bag. Struggle is real. एक्शन कैमरा को फाइनली यूज़ में डालते हैं. इससे मैं इसको कार के बाहर बोनेट पे अटैच करने लगा. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So right now I am going to tell you about the workout programming that you need to follow. So at last it is finally time for me to share the Scott maxing programming with you all, and मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ because this programming is the best method you can do to achieve crazy muscle mass and grow crazy strength in your squats. पहला स्टेप है keep in mind, तो पहला स्टेप ये है कि अगर आपको स्क्वाट में कोई भी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन है तो पहले हमें उसे एलिमिनेट करना है because we need a full ROM and
पेन फ्री स्क्वाट। बॉडी का कोई भी पार्ट सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए उस मूवमेंट को करने के लिए, तो दैट इज़ वाई मोबिलिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस शेयर करने लगा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी बेस्ट स्क्वाट मूवमेंट को अचीव करने में। तब तक जितना आप पेन फ्री स्क्वाट कर सकते हो आपको वो करना है। तो पहली है ओवरहेड प्लेट स्क्वाट, इसमें हमने पार्शियल रेप्स करने हैं। दूसरा है डंबल एंकल मोबिलिटी, जो कि आप हाई नी मतलब बेंच पे रख के आगे पुश फॉरवर्ड करोगे अपनी बॉडी को। तीसरा है हिप बटरफ्लाइज, चौथा है फुल आर्म लो बैक एक्सटेंशंस, एंड पांचवा है केटल बेल हिप शिफ्ट, एंड सिक्स्थ है हाफ सिंगल लेग स्क्वाट्स, जो कि हम स्टेपर पे करेंगे या कोई भी टेबल या छोटा सा बेंच रख के। ये 6 की 6 एक्सरसाइजेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे जाके आप हर एक एक्सरसाइज को खोल के उसकी एग्जीक्यूशन वीडियो देख के समझ सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। इसके आपको 1 से 2 सेट करने हैं हर एक स्क्वाट वर्कआउट से पहले, हर एक लोअर बॉडी सेशन से पहले। आप वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार इस मोबिलिटी रूटीन को फॉलो करो। हर एक एक्सरसाइज के 2-2 सेट, 12-12, 13-13 रैप, एंड गोल ये है कि हमें एक्टिवेट करना और अपनी बॉडी को पुश करना उस मोबिलिटी को अचीव करने के लिए। सो अब आती है बात मेन स्क्वाट स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग एक्सरसाइजेस की। इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी है फाउंडेशन स्ट्रेंथ एंड मसल मास बिल्डिंग एक्सरसाइज, एंड दूसरी है वीक पॉइंट्स एलिमिनेटिंग एक्सरसाइजेस। तो पहले फाउंडेशन की बात करते हैं। ये वो एक्सरसाइजेस है जो कि एज ए एसेसरी हम बोलते हैं पावर लिफ्टिंग में, एंड इनको सीरियस एफर्ट के साथ करना है, बिकॉज यहाँ पे जितना ग्रो करोगे उतना ही फायदा आपको आपकी स्क्वाट की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मिलेगा। अब पहली आती है वेटेड लोअर बैक एक्सटेंशंस, दूसरी आती है बारबल स्क्वाट्स इटसेल्फ, तीसरी आती है हैक स्क्वाट्स, चौथी आती है स्मिथ मशीन फ्रंट स्क्वाट्स, पांचवी है वाइड और नैरो स्टांस लेग प्रेस, और छवी है बारबल और डंबल आरडीएल्स। यूनिलैटरल वेरिएशन भी कर सकते हो अगर कोई इम्बैलेंस है। सातवीं है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, क्वाड एंड ग्लूट डोमिनेटिंग, वो हम खुद डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वीक पॉइंट्स। उसके बाद है सीटेड एंड लाइंग लेग कर्ल्स, 9वीं है हिप थ्रस्ट अगर ग्लूट्स बहुत वीक है, और 10वीं है लेग एक्सटेंशंस प्लस यूनिलैटरल एंड पॉज्ड वेरिएशंस, और लास्ट है डंबल लंजेस, और लास्ट है सर्चर स्क्वाट्स। ये सब एक्सरसाइजेस का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब ये सारी एक्सरसाइजेस डायरेक्टली आपकी लेग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी और वो मास ऐड करेगी जो आप चाहते हो अपनी लोअर बॉडी में। अब देखो, अब लोगों को लग रहा है शायद मैं चैट जीपीटी से ना बोल रहा हूँ, बट दिस इज ऑल रिटन बाय मी ऑन द नोट पैड। मैंने खुद सब कुछ लिखा है अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से, और जो कि सही में वर्क करता हूँ, जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप इन नेसेसरी मूवमेंट्स में होगे उतना ज़्यादा आप रेजिलियंट हो जाओगे इंजरी के रिस्क से, और उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनोगे अपनी स्क्वाट्स में। सेट्स एंड रेप्स की अगर बात करें तो अगर आप एक वॉल्यूम फेज में हो, यानी कि जब आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करने पे है, तब आपको इन मूवमेंट्स के 3 से 4 सेट करने हैं 8 से 12 रेप्स के लिए टिल RP9, एंड हर एक एक्सरसाइज का 1-1 या 2-2 सेट आप टिल फेलियर पुश करोगे RP10 और प्लस। तो यही अगर आप स्ट्रेंथ फेज के पास हो, जब आप अपने 80% में 1 RM या उससे ज़्यादा के पास लिफ्ट कर रहे हो, आपको PR को अप्रोच करना आने वाले टाइम में, तब आप इन एसेसरी एक्सरसाइजेस के सेट्स रखोगे कुछ 2 से 3, और हैवी ड्यूटी सेट्स जो कि 6 से 8 रेप रेंज के बीच में होंगे, सेम RP9, एंड 1 और 2 सेट पुश टू RP10। तो फेस के हिसाब से हमेशा रेप रेंज को मॉडिफाई करो ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट कर सको, और सेम फॉर हाइपरट्रॉफी। ये सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अपने फेस के हिसाब से अपने एसेसरी वर्क के रैप एंड सेट्स को रखो। तो अब ये जो सारी एक्सरसाइजेस है, ये नहीं कि आपको हर एक सेशन में ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस करनी है। दीज आर ऑल द एक्सरसाइजेस विच आर गोइंग टू हेल्प यू इंक्रीज योर स्क्वाट स्ट्रेंथ। आप अपने सेशंस के हिसाब से इनको डिवाइड कर सकते हो, अपने वीक पॉइंट्स के हिसाब से। जो आपको लगता है अगर आपके ज़्यादा हैमस्ट्रिंग वीक है, देन हैमस्ट्रिंग के ज़्यादा मूवमेंट्स रखो, और अगर आपको लगता है ग्लूट्स वीक है, सेम गोज फॉर क्वाड्स। तो ऐसे आपको सेट करना सब कुछ। अब सेकंड कैटेगरी है वीक पॉइंट फोकस्ड एक्सरसाइजेस। इसमें मेरी 3 सबसे फेवरेट है। पहली है पॉज बारबल स्क्वाट्स, दूसरी है पिन स्क्वाट्स, और तीसरी है टेम्पो स्क्वाट्स। पॉज बारबल स्क्वाट्स आपको तब ऐड करनी है जब आप बॉटम पोजीशन में सबसे ज़्यादा वीक फील करते हो, या जब आप सबसे नीचे होते हो, आप उठने में वीक फील होता है, या आपको वहाँ पे अपनी डेप्थ को रीच आउट करने में वीक फील होता है, तब आपको पॉज स्क्वाट्स बहुत हेल्प करेगी। 2 से 3 सेकंड का बॉटम पे पॉज देना है। उसके बाद आता है पिन स्क्वाट्स। सो पिन स्क्वाट यूज होती है जब आप किसी पर्टिकुलर ROM के थ्रू वीक फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग 90 डिग्री से जब वापस ऊपर आ रहे होते हैं, तब वहाँ पे एट द लॉकआउट या 90 डिग्री पे या कोई भी एंगल पे जहाँ पे आप स्टक कर रहे हो, वहाँ पे आपको अपने पिन सेट करके ये वाली स्क्वाट्स करनी है। इससे आप अपने उस पर्टिकुलर वीक एरिया को, जहाँ से आपका ROM स्लो हो जाता है, जहाँ पे आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ताकि आप अल्टीमेटली अपनी स्क्वाट को लॉकआउट और पूरा परफॉर्म कर सको एट द बेस्ट। और फिर आती है टेम्पो स्क्वाट्स। टेम्पो स्क्वाट्स का बेसिकली काम होता है आपकी
झटका अगर आपका स्क्वाट्स में आता है या आप बहुत तेज़ परफॉर्म करते हो, नीचे एकदम से जाते हो, झटके से ऊपर आते हो, उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए और वहाँ पे कंट्रोल ऐड करने के लिए, बिकॉज चाहे या झटके से आप थोड़ा ज़्यादा वेट उठा पा रहे हो बट इट कैन बी रियली हार्मफुल, तो आपकी इंजरी रिस्क बहुत हाई रहता है इसके कारण। झटके से कल को नी पे भी आ सकता है और लोअर बैक पे भी आ सकता है, हिप पे भी आ सकता है, तो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एज यू गेट स्ट्रॉन्गर यू नीड टू बिल्ड मोर कंट्रोल टू। ये जो तीनों एक्सरसाइजेज हैं इनको ऐसे सेकेंडरी वेरिएशन ऐड करो। आपके 2 सेशन रखो लोअर बॉडी के, जो आपके 2 लोअर बॉडी के सेशन होंगे 7 या 8 दिनों के पीरियड में या इन अ वीक, उसमें सेकंड सेशन में इन तीनों में से एक एक्सरसाइज ऐड करो अकॉर्डिंग टू योर वीक पॉइंट्स। तो जो भी आपका वीक पॉइंट रहेगा उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज सेलेक्ट करोगे इनमें से और उसको आप परफॉर्म करोगे अराउंड योर, अगर आप हाइपरट्रॉफी फेज पे हो देन 73 टू 83% के अराउंड फॉर रेप्स, और अगर आप अपने अभी स्ट्रेंथ फेज पे हो देन 83 टू 93% ऑफ ए 1 RM फॉर मल्टीपल सेट्स ऑफ लोअर रेप्स अराउंड 3 से 5 रेप्स, और अगर हाइपरट्रॉफी की बात करूं तो 6 से 8 रेप्स। तो ये सेकेंडरी वेरिएशन होती है जो कि वीक पॉइंट्स पे फोकस होती है ताकि ओवरऑल आपकी स्क्वाट की स्ट्रेंथ अप जाए। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक 4 वीक वर्कआउट प्रोग्रामिंग शेयर करना चाहता हूँ लोअर बॉडी की। इसमें 2 सेशन है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, यू कैन सी दैट। और जो सेकेंडरी सेशन है उसमें से वही आप तीनों में से कोई भी वीक पॉइंट फोकस एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो, और प्राइमरी सेशन में जो सब भी मैंने ऐड करा है या जो भी सेकेंडरी में एडिड है एक्सरसाइजेस वो आप चेंज कर सकते। कीप इन माइंड जो भी आपके मसल वीक है उसके हिसाब से आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी प्रोग्रामिंग मैंने एक फटीग मैनेज करके प्राइमरी सेशन में आपका थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम वर्क है और थोड़े इंटेंस मूवमेंट्स हैं जिसके कारण ऑब्वियसली यू विल नीड अ गुड रेस्ट, तो आप अगले दिन एक रेस्ट ले सकते हो। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी बेस्ट कि आप एक दिन पहले भी रेस्ट लो लेग सेशन से। ये उनके लिए जो कि बहुत जो कि एडवांस या अभी इंटरमीडिएट से ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हैं, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर है या जो अभी इंटरमीडिएट लेवल के पास पहुंच रहे हैं, they can continue to perform their upper body session after the lower body session। बाकी एडवांस लोग एक दिन पहले भी रेस्ट लो और अगले दिन भी ले सकते हो बिकॉज वॉल्यूम इज़ अ बिट हाई। और जो सेकेंडरी सेशन है उसमें भी जो एक्सरसाइजेस एडेड है आप अपने वीक पॉइंट्स के हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हो सेट्स को या रेप्स को। सो दिस इज़ अ टेम्पलेट एंड डेफिनेटली ये टेम्पलेट खुद में ही बहुत तगड़ी है, मैंने खुद भी यूज़ करी, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दी है एंड दे हैव सीन सम ग्रेट रिजल्ट्स एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको भी मिलेंगे। यू शुड रन एटलीस्ट इट फॉर 4 to 8 weeks टू सी बेस्ट रिजल्ट्स। तो अगर आपको स्ट्रेंथ फेज के लिए भी टेम्पलेट चाहिए तो कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट वन टू। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑलरेडी वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसी के साथ मैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आई एम वेरी श्योर कि कोई भी आपका इन्फ्लुएंसर इतने अच्छे से इन चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करेगा विच आई एम डूइंग फॉर यू ऑल, बिकॉज आई नो कि इंजरी से दूर रहना, मोबिलिटी पे ध्यान देना, प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है अगर आपको अल्टीमेटली नेचुरली अपनी स्ट्रेंथ को पीक पर लेके जाना है विद टाइम। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल बी बैक विद सम क्रेजी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचुरल लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग।